खूबसूरत फूलों और ज्यामितीय रूपांकनों वाली ये कलमकारी कई मायनों में बेमिसाल है। बिदरी नाम से मशहूर ये रिवायती धातु शिल्प कर्नाटक के बिदर शहर की देन है। बिदरी काले धातु पर चांदी, सोने या तांबे जड़ने की कला है। पहले कारीगर इस धातु को चमकाते हैं, उसके बाद ही इस पर जड़ाई होती है। बिदरी कला ईरानी, तुर्की और इस्लामी संस्कृतियों का कलात्मक मेल है, जिसमें स्थानीय प्रभाव भी नजर आता है। बिदरी का उस स्थान से गहरा संबंध है जहां इसकी शुरुआत हुई थी। बिदरी की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। तब दक्कन में ताकतवर बहमनी सल्तनत का शासन हुआ करता था। बहमनी सल्तनत की बुनियाद अलाउद्दीन बहमन शाह ने डाली थी। बिदर सन 1430 से लेकर सन 1520 तक बहमनी शासकों की राजधानी हुआ करता था। आज बिदर शहर आलीशान बिदर किले के लिए जाना जाता है। इसी कला की मिट्टी में इस खूबसूरत शिल्प परंपरा का रहस्य छुपा है। कला के इस रहस्यमय रूप की कहानी जानने के लिए हमने बिदर का रुख किया। बिदरी कला की मूल शैली दक्कन के बहमनी शासकों की देन है। बहमनी दक्कन के पहले मुस्लिम शासक थे। उन्होंने सन 1347 में जब इस क्षेत्र में अपना शासन कायम किया, तब सांस्कृतिक प्रभावों और मेल मिलाप के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने एक अनूठी शैली दक्कनी को जन्म दिया। इस शैली को वास्तुकला, शिल्प और अन्य कलाओं में देखा जा सकता था। दौलताबाद और गुलबर्गा के बाद बिदर सन 1430 में बहमनी सुल्तानों की राजधानी बन गया था, जो सन 1520 में उनके पतन तक जारी रहा। 15वीं सदी में बिदर अपने वैभव के चरम पर था। बिदर उत्तम संस्कृति और कला का केंद्र बन गया था और यहाँ बड़े बड़े व्यापारी, कारोबारी, विद्वान, सूफी संत और कलाकार आने लगे थे। ये वो समय भी था जब बिदरी कला बुलंदियों पर पहुंची। इस क्षेत्र और बहमनियों पर दशकों तक शोध कर चुकी इतिहासकार हेलन फिलन ने हमें बिदर और इसके विशेष कला रूप के बारे में बताया। Loot, tribute, money. They would come to the Deccan, which was the land of promise, take as much as they could, go back, mint their coins, solve their economic problems and start again. But they were very wise that they did not stay here for very long. They did not stay in the Deccan for very long. Because committing yourself into a kingdom is a different story than invading a kingdom and taking its riches. The first to do that were, of course, the Tughlaqs, who soon realized that it was not such a good idea, and Muhammad Tughlaq went back to Delhi, leaving this group of generals to fight and try and find a modus vivendi, and that's when the Bahmanis are born. But, and then, of course, we start having a state, building of a state, building of a Deccani identity. Before it was Hindustan that was invading. Now you're beginning to have an identity that is Deccani. This is the time Timur is in power in Northeast Asia, in Central Asia. He has invaded Turkey, the whole area is in motion. People are looking for new areas to find shelter, work, food, and the Deccan is protected. It was an area where, in fact, was welcoming all sorts of people
if you were an intellectual, an amazing craftsman, even more so, because the Deccanis were very keen at attracting the best. And it was sort of the promised land at the time. And the other place where, in fact, also you had a promised land is in Anatolia, in Turkey, present-day Turkey. So these are the two areas of Asia that were attracting more and more immigrants and foreigners. But they also opted for foreigners or immigrants that had talent. And that it became like, you know, even America later on tried also to attract people with talent. And the Deccan did that. So you had the amazing craftsmen, amazing builders, intellectuals, and they came and settled, and they were all welcome. And for the Deccanis, there was no really difference between the different immigrants, the different immigrant communities that came. The locals, however, were not always very happy to have foreigners coming, but they coexisted as long as the sultans tried to be just and even with all their subjects, which was not always the case, because the sultans would come under the influence of one community or the other, and then problems would rise. But in general, it was a community that coexisted. But during the Bahmani period and during the Baridi period as well, and also the Adil Shahis also respected Bidar as they did with Gulbarga. It remained a great cultural center. Suffice to see the monuments and you realize how important it is. And I think the city, Bidar, was divided into sections because you already, I mentioned earlier that I believe Bidar was built for the Afakis as the inimical relations were growing in Gulbarga, so Ahmad Shah tried to separate the two. So they came, the Afakis became an Afaki city, and Bidar became a great center. And Ahmad Shah gives tremendous importance to trade. It's the first time that we have a minister, someone who is Malik al-Tujar, which is the king of merchants in charge, obviously, of commercial relations. But he was also a very close friend of Ahmad Shah Wali. And Mahmud Gawan is also Malik al-Tujar. And his son succeeds Mahmud Gawan is Malik al-Tujar. So tremendous importance is given to trade. So horses were very important. Elephants were also, of course, important. And then you had gold was in great demand. Silver was too. And then you have textiles that were exported, but also certain silks that were imported. You had luxury goods, which were all these essences that were coming from both the northeast, but also from different parts of and of Persia and also Ethiopia. The idea of inlaying one material in another is something that we have it first on cannons, on Baridi cannons, and they were inlaid in gold or silver. And I think this is the first evidence of inlay on two different materials. And of course, the second and most impressive is the mother of pearl on basalt, which was never repeated after that. And I think Bidri belongs to the same tradition. And you still have very good Bidri work being done in Bidar, even now. ऐसा माना जाता है कि सुल्तान अहमद शाह बहमनी ने बिदर में शाही महलों और दरबारों को सजाने के लिए ईरान के एक मशहूर शिल्पकार अब्दुल्ला बिन कैसर को बुलवाया था। कहा जाता है कि उसके बाद सुल्तान ने उतने ही प्रतिभाशाली एक स्थानीय सुनार को बुलवाया जिसने बिदरी वैर बनाया था। बहमनियों के शासन काल में बिदर में कला और वास्तुकला खूब फूली फली। बिदर किला और बिदरी कला दोनों ही इसके सबूत हैं। भव्य बिदर किले के अंदर सुंदर मदरसों, मस्जिदों, मंडपों और मेहराबों के 30 से अधिक स्मारक मौजूद हैं। लगता है कि बिदरी की नाजुक डिजाइनें बिदर किले के अंदर और बिदर में इधर उधर बनी शानदार इमारतों पर नजर आने वाले
रूपांकनों से ली गई है। लगभग 40 दशकों से बिदरी कला का काम कर रहे मोहम्मद अब्दुल जी ने हमें इस कला, सुंदर डिजाइनों और रूपांकनों के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिल रही है। मुगल एम्पायर वगैरह जो आए ना, उस बाहर उधर के बादशाह वो लोग उनके साथ जो है ये आए थे आर्टिजान। वो लोग हमेशा अपने साथ में है अतिब्बाओं को, हकीमों को, उनको साथ रखते थे। इस किस्म के आर्टिजानों को भी साथ रखते थे। तो इसके अंदर जो है एक फैमिली जो है मुरादाबाद में ठहर गई, जो मुरादाबाद वर्ग कहलाता है, और एक जो है फैमिली दक्कन की तरफ कूच करी। वो बिदर के किले के अंदर जो है बैठकर काम करते थे। उसको सबसे पुराना डिज़ाइन तो ये जो है मुगल डिज़ाइन कहलाता है, मेहताबी कहलाता है, और उर्दू में उसको पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में उसको शीट कहते हैं। उमूमन जो है जो पुरानी जो इमारतें हैं उनके ऊपर डिज़ाइनिंग किए हुए हैं। तो वो डिज़ाइनिंग जो है इस आर्ट के अंदर जो है लिया करते थे उस वक्त कारीगर। उसका बाज़ाब्ता कोर्स होता था, वो कोर्स को जो सीखते थे, वो डिज़ाइनिंग करते थे। बाज़ कारीगर तो ऐसे हैं कि खाली जो है यूँ देख लिए एक दो नज़र तो उसका पूरा डिज़ाइन वो जो है अपने कापी पर या अपने जो है बिजली के डब्बे पर, प्लेट पर उसको जो है उसको जो है ड्राइंग कर लेते थे। उस ज़माने के अंदर जो केमिकल बनाकर जो हम इमारतें बनाए थे, वो केमिकल के अंदर कुछ इफेक्ट असर है। वो तो उस मिट्टी को लेकर जो है उसके अंदर नौसागर डालकर जो है उसके अंदर जो है कलर आता है। वो मिट्टी के जो तामीर जो है वो मिट्टी के अंदर वो लोग कुछ मसाले मिलाते थे, तो उसका इफेक्ट है वो। उस वक्त के बादशाह जो रहते थे वो जो है ये चीज़ खरीद कर दूसरों को गिफ्ट किया करते थे। रजवाड़े हैं, निज़ाम के तहत जितने रजवाड़े थे, वो आप उन्हें हुजूर निज़ाम को खुश करना है, उनके घर में कोई तकरीफ है, कोई फंक्शन है, या किसी नवाब के घर के अंदर फंक्शन है, वो है, ये है, तो बिजली का जो है तोहफा देते थे वो लोग। ये कह सकते हैं हम कि गरीब परवर लोग थे वो, सनत की कदर करने वाले थे वो लोग। और उस वक्त माहौल ऐसा कुछ बन गया था अवाम का भी कि मामली से मामली अवाम के घर के अंदर में भी अगर कोई बिजली का कोई तोहफा मामली से अगर डब्बा भी ना दे तो नवाब अगर ना दे तो उसको बोलते कैसा कंतराटी नवाब है ये। मैंने अपनी बेटी के शादी के अंदर बिजली का जो है आइटम देना बहुत ज़रूरी समझते थे उसको। उसका असर जो है अवाम के ऊपर ये पड़ा था कि हर अवाम के अंदर में भी जो शादियां होते थे वो लोग भी जो है तोहफे तोहफ के अंदर जो आइटम देते थे। जैसा अब वो बड़े लोगों के अंदर पानदान होता था, उगालदान होता था, और बड़े फुलार वाजज होते थे, हुक्के होते थे, इस किस्म की चीज़ें बड़े बड़े बादशाह नवाबा वगैरह जो एक दूसरे को गिफ्ट करते थे। लेकिन मीडियम क्लास के लोग क्या करते थे, छोटे छोटे पान के डब्बियाँ, छोटे छोटे जो है लेडीज़ हैं तो इयरिंग्स है, नेकलेस सेट है, इस किस्म के जो है गिफ्ट किया करते थे। हर शादी के अंदर जो है एक तो एक चीज बिजली की होना बल्कि एक आम रिवाज बना हुआ था उस जमाने में। बिदर के स्मारकों को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस कला में रूपांकन कहां से लिए गए हैं। रंगीन महल के खंभों पर लकड़ी की बारीक नक्काशी में ज्यामितीय और पुष्प रूपांकनों और सुंदर रंगीन टाइल वर्क पर इन्हें देखा जा सकता है। रंगीन महल अली बरी शाह ने बनवाया था। रंगीन महल के अंदर फारसी भाषा में सुंदर मदर ऑफ पर्ल कलमकारी भी है। इस काम को बिदरी कला पर उकेरे जाने की प्रेरणा के रूप में देखा जा सकता है। बिदरी कला में कुरान के आयतें भी शामिल होती हैं, जिनका इस्तेमाल अलंकरण के रूप में किया जाता है। उन्हें 15वीं सदी में बहमनी सुल्तानों के वजीर मोहम्मद गवान के मदरसे पर इस्लामी सुलेख के भित्ति चित्रों में देखा जा सकता है। डिजाइन और पैटर्न भी अश्तूर के बहमनी मकबरों के अंदर की दीवार पर बने चित्रों से प्रेरित लगते हैं, खासकर सुल्तान अहमद वली शाह के मकबरे के अंदर के चित्रों से। इस मकबरे की दीवारें ईरानी कालीनों से लिपटी होने का भ्रम पैदा करती हैं। मकबरे की मेहराबों के कोने पर
काले पत्थर पर डिजाइन उकेरे गए हैं जो बिदरी वेयर में इस्तेमाल किए जाने वाली नक्काशी की याद दिलाते हैं। हजरत खलीलुल्लाह का मकबरा चौखंडी एक ताज के आकार का स्मारक है जिसमें शानदार फारसी सुलेख और काले पत्थर पर साफ सुथरी नक्काशी है जो बिदरी कला के मुताबिक है। बिदरी जैसे आश्चर्यजनक चीज बनाना किसी धातु को सोने में बदलने जैसा काम है जिसमें बहुत समय लगता है। मोहम्मद कमीरुद्दीन लगभग 30 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। उन्हें ये कला उनके पुरखों से विरासत में मिली है जिन्होंने लगभग 80 वर्षों तक ये काम किया था। कमीरुद्दीन ने हमें बिदरी की प्रक्रिया के बारे में समझाया। बेसिक मेटल तो इसका जिंक कॉपर अलाय होता है, इसका बेस। इसको हम फर्स्ट मोल्ड कर लेते हैं, मोल्ड करके फिर इसको स्मूथ फाइलिंग करके कॉपर सल्फेट से टेम्पररी ब्लैक करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। उसमें डिज़ाइन डाल के फिर इनग्रेविंग होता है। इनग्रेविंग होने के बाद फिर उसमें सिल्वर इल्ले करते हैं। सिल्वर इल्ले होने के बाद स्मूथ फाइलिंग करके इसको बफिंग करते हैं। बफिंग करके फिर वो एक सोल्यूशन में डालते हैं। वो बिदर फोर्ड है ना, बिदर फोर्ड से मिट्टी ला के थोड़ा उसमें पानी डाल के उसको बॉइल करके हमारा फिनिशिंग आइटम उसमें डिप करके, डिप करने के बाद एक 10-15 मिनट के बाद वो जिंक पार्ट जितना होता है ब्लैक हो जाता है, फिर सिल्वर रिमेनिंग वैसे ही रहता है डिज़ाइन। 8 चरणों से गुजरने के बाद कहीं धातु का एक टुकड़ा बिदरी कला का एक खूबसूरत रूप लेता है। इनमें से एक चरण खास और अनोखा है क्योंकि इसमें बिदर किले की मिट्टी का उपयोग किया जाता है जिससे बिदरी को उसका काला रंग मिलता है। पहले चरण में धातु की ढलाई कर उसे वो आकार दिया जाता है जिस आकार में उसे बनाया जाना है, जैसे फूलदान या बक्सा। फिर वस्तु को चिकना किया जाता है और फिर छेनी से उस पर पैटर्न बनाए जाते हैं। इसमें कितना समय लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि डिजाइन कितनी महीन और जटिल है। इसके बाद भराई के लिए शुद्ध चांदी के पतरे या तार का प्रयोग किया जाता है। फिर इसे चिकना बनाया जाता है और चमकाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया ये है कि कैसे इसे काला रंग मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि बिदरी कारीगरों का कहना है कि बिदरी बर्तनों का ऑक्सीकरण सुनिश्चित करने के लिए वो बेहद अमूल्य मिट्टी का उपयोग करते हैं जो केवल बिदर के किले के अंदर ही मिलती है। इससे बिदरी को खास काला रंग मिलता है। उसमें कुछ अमोनियम क्लोराइड है या कुछ सल्फेट है, उसमें कुछ एसिड है जिससे वो ब्लैक कलर आता है। इसमें सब में नहीं है, वो बिदर फोर्ट में भी कुछ ख़ास जगह पे है, पूरा बिदर फोर्ट में भी नहीं होता। वो देख के टेस्ट करके लाना पड़ता है, उसको अंदर जाके देखना पड़ता है उसको। वो थोड़ा सॉल्टेड होता है मिट्टी, पता लगता है कि वो सॉल्ट रहे तो ही वो काम में आता है हमारे, नहीं तो ये तो आम मिट्टी तो काम में नहीं आएगी। बिदरी का काम 2 तरह का होता है। पहले काम में एक पैनी, छेनी और हथौड़ी से चांदी के तारों को धातु पर महीन डिजाइनों को भरने में किया जाता है, या फिर चांदी के पतरे सावधानी से जड़ी जाती हैं। चांदी के तारों का उपयोग करके जड़े हुए काम को तारकशी नाम से जाना जाता है, जबकि धातु की पतरे से जड़ने को तह निशान कहते हैं। सबसे जटिल डिजाइनों को महताबी काम कहा जाता है। इसमें सतहों को उलट दिया जाता है। इसमें धातु के पत्रों पर डिजाइन बनाकर उस हिस्से को काट लिया जाता है और फिर जड़ाई होती है। बेल बूटे की उभरी हुई नक्काशी को मुन्नवतकारी कहते हैं। उसके बाद कलाकृतियों को तब तक चिकना किया जाता है जब तक
उनमें चमक पैदा ना हो जाए। काले रंग के लेप को गहरा करने के लिए नारियल के तेल से पॉलिश किया जाता है। तरह तरह के फूल, जिन्हें अशरफी की बूटी कहा जाता है, पत्ते, बेल, ज्यामितीय डिजाइन, फूलों के साथ शैलीबद्ध अफीम के पौधे जैसे पारंपरिक डिजाइन बहुत प्रचलित है। दुनिया भर में ईरानी गुलाब और अरबी में कुरान की आयतों के सुलेख जैसे पैटर्न की बहुत मांग है। इसमें ये फुलझड़ी वर्क बोलते हैं, ये शीट वर्क है, इसमें वायर वर्क भी आता है, ज्योमेट्री डिज़ाइन आता है। इसमें पहचानने के लिए तो इसमें शीट वर्क के जैसे सिल्वर इनले होता है तो पता चलता है ये हाथ का काम है बोल के। बिदर के इतिहास का बिदरी की कला पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। सन 1520 में बहमनी सुल्तानों के पतन के बाद बिदर पर 1619 तक बरीद शाही खानदान का शासन रहा। उसके बाद औरंगजेब को उनके पिता मुगल बादशाह शाहजहां ने दक्कन का सूबेदार बना दिया। 17वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब ने घेराबंदी कर शहर और किले पर कब्जा कर लिया। इस तरह बिदर मुगलों के अधीन हो गया। किले में और बिदरी में भी कुछ डिजाइनों में मुगल प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। विशेष रूप से मुगल अफीम के फूल की आकृति में, जिसे बिदरी के काम में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे खूबसूरत और सबसे लोकप्रिय रूपांकन माना जाता है। हैदराबाद पर शासन करने वाले असफ जाही शासकों के राज्य में भी बिदरी कला बहुत फूली फली। बिदरी से कई कारीगर हैदराबाद में बस गए थे, जो दक्कन की नई राजधानी थी। लेकिन 19वीं शताब्दी में इस कला में गिरावट आ गई थी। आज बामुश्किल 150 कारीगर बिदर में इस कला से जुड़े हैं। इनमें से ज्यादातर बिदरी कॉलोनी में बने मकानों में रहते हैं। हैदराबाद में भी सिर्फ 20 से 25 कारीगर ही इस कला से जुड़े हैं। मोहम्मद कमीरुद्दीन ने हमें बताया कि इस कला को आज कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिदरी का डिमांड कैसे साल में ऐसा होता है कि कभी ऑर्डर ज़्यादा आ जाते हैं, कभी कम आते हैं, इसका कोई बोल नहीं सकते। एक साल अच्छा रहता है, कभी दूसरा साल कम हो जाता है। तो अभी हमको बनाने में ये तकलीफ़ हो रही है कि ऑर्डर आते हैं तो हमारे पास कारीगर नहीं है, कारीगर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि नया जनरेशन इसमें आ रहा है, नहीं कोई सीख नहीं रहा है तो पुराने कारीगरी है, वही उनसे ही काम लेना पड़ता है। तो कभी कभी बल्क ऑर्डर आता है तो हमको ज़रा परेशानी हो जाती है कि वो ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कारीगर नहीं होते हैं। हम जब सीखते थे जब तो हम लोग ज़्यादा सीख रहे ज़्यादा थे। अभी उसके बाद में एक 15-20 साल से कम होने लगा है, ये कारीगर कम होने लगा है। 400 के ऊपर थे, अभी 160 या 250 ऐसे ही है। बिदरी का तो कोई दूसरा आर नहीं रहा है। हमको यही लगा है कि अब ये धीरे धीरे कारीगर कम हुआ तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नया कोई सीखता नहीं है ना। हाँ, मेरा लड़का करते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं है उनको। इसके चाहने वाले भी लोग कम होते जा रहे हैं। अभी जैसा हमारे न्यू जनरेशन ये सीख नहीं रहा, अभी न्यू जनरेशन इसको लाइक भी नहीं कर रहा। उनको पता भी नहीं है कि ये मेटल का क्या होता है, आर्ट्स क्या होता है, बिदरी वर्क क्या होता है। इसके लोग चाहने वाले भी कम होते जा रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिदरी वर्क क्या होता है। नए जनरेशन को उतना लगाव नहीं है इसमें। बिदरी का काम आज गिने चुने कारीगर ही कर रहे हैं। विभिन्न सहकारी समितियां, सरकारी और गैर सरकारी संगठन इस गुम होती शिल्प कला को दोबारा जिंदा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इस कला को बचाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा अपने बुजुर्गों का अनुसरण करें और बिदरी कारीगर बने, क्योंकि इसी तरह बिदरी की कला फल फूल सकेगी।